Today we will study about the shear and bond in concrete structure. Here is definition. Shear in concrete is an internal force tangential to the plane on which it acts. This is our beam. इंटरनल टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंट पे सरफेस पे जो फोर्स लगता है बीम के थ्रू, जो लोड आ रहा है उसके अगेंस्ट, वो शियर फोर्स होता है. शियर इन बीम इज काउज्ड ड्यू टू चेंज इन बेंडिंग मोमेंट इन द स्पैन. दिस इज आवर बीम. दिस इज बेंडिंग मोमेंट caused due to load. So there is change in bending moment. At this point there is maximum bending moment. At this point support, there is bending moment in 0, and there is similarly variation in bending moment. So due to these variation, shear cause in beam. बीम में जो बेंडिंग मोमेंट डेवलप होता है वो हर जगह सिमिलर नहीं होता है. इस पॉइंट में बहुत ज़्यादा होता है, फिर कम होता है, फिर कम होता है, और यहाँ 0 होता है. तो इस वेरिएशन के वजह से, बेंडिंग मोमेंट में वेरिएशन के वजह से बीम में शियर डेवलप होता है. शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट. कंक्रीट इज गुड इन शियर, so its shear strength is to be considered in the design of RCC structure. As like concrete is good in compression, concrete is also good in shear. So while designing, we also check out the shear strength of concrete. So the shear resistance of reinforced concrete depend upon the following. shear resistance किस किस पे डिपेंड करता है? तो फर्स्ट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट. shear resistance depend upon the grade of concrete. The shear resistance of concrete increase with increase in the grade of concrete. shear resistance increase होगा, मतलब shear को resist करने का कैपेसिटी कंक्रीट स्ट्रक्चर में इंक्रीज होगा अगर हम लोग ग्रेड ऑफ कंक्रीट इंक्रीज करते हैं. ओके. सेकेंड, परसेंटेज ऑफ रिइंफोर्समेंट. shear resistance depend upon the grade of concrete and also depend upon the percentage of reinforcement. shear reinforcement also increase while we increase the reinforcement in the structure. अगर हम लोग reinforcement को भी इंक्रीज करते हैं तो shear resistance का कैपेसिटी स्ट्रक्चर में इंक्रीज हो जाता है. shear को सस्टेन करने का कैपेसिटी, shear को रेसिस्ट करने का कैपेसिटी स्ट्रक्चर में अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज होगा, और अगर AST रिइंफोर्समेंट इंक्रीज करते हैं तो भी इंक्रीज होगा. दिस इज वन कंडीशन बाय विच वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड shear in beam. So consider a simply supported beam subjected to transfer loading. The rectangular block ABC is acted by ultimate shear force. This is a beam, simply supported beam. We have taken this block ABCD. So the rectangular block ABCD is acting by ultimate shear force. यहाँ shear force लग रहा है. Hence shear stress tau induced, whose effect is to be deformation of shape of the block A dash B dash C dash D dash. ओके, हमारे पास ये बीम है, लोड कैरिंग बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम. हमने इस ब्लॉक को कंसीडर करा. ये मोमेंट डेवलप हुआ लोड की वजह से, इस ब्लॉक को मैंने यहाँ निकाल लिया. शियर फोर्स इस ब्लॉक पे लग रहा है, उसके वजह से, शियर फोर्स की वजह से हमारा ब्लॉक कुछ इस तरह से डिफॉर्म हो जाता है. ABCD पहले था रेक्टेंगुलर शेप, अब थोड़ा डिफॉर्म हो जाता है शियर फोर्स की वजह से A डैश B डैश C डैश में. ओके, वी फाइंड दैट द कंप्रेशन स्ट्रेस आर डेवलप्ड एट A डैश C डैश एंड द टेंसाइल स्ट्रेस आर डेवलप्ड ऑन द डायगोनल BD. तो हम क्या देखते हैं कि जो शियर डेवलप हो रहा है इस पर्टिकुलर सेक्शन पे, इस पर्टिकुलर पार्ट पे, तो A डैश और C डैश पे कंप्रेशन आ रहा है, बिकॉज हमारा फोर्स, शियर फोर्स का डायरेक्शन किस साइड है? टाउ. टाउ को डिनोट करते हैं शियर फोर्स से, टाउ से डिनोट करते हैं शियर फोर्स को, और ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, या इसलिए इस पॉइंट पे कंप्रेशन हो रहा है, और ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए इस पॉइंट पे कंप्रेशन हो रहा है, और इस पॉइंट पे टेंशन
क्रिएट हो रहा है. So we find that the compression stress is developed at A and C and tensile stress are developed on the diagonal BD. Due to diagonal tension and diagonal compression, due to this and this diagonal tension और diagonal compression develop हो रहा है, उसके वजह से shear crack developed. Okay. For overcome the shear crack, we provide shear reinforcement. Provide shear reinforcement for to overcome the shear crack. So type of shear reinforcement: vertical shear reinforcement, bent up bar along with stirrup and inclined stirrup. हम लोग shear reinforcement के लिए जो reinforcement प्रोवाइड करते हैं 3 तरह से प्रोवाइड करते हैं: vertical stirrup, bent up bar and inclined stirrup. This is vertical stirrup. This is our main bars. Okay, this is shear reinforcement. These vertical stirrups are the shear reinforcement. So this is vertical, so it is called vertical stirrup, and this is inclined stirrup. Okay, and this is bent up bar. So we will go for the definition. Vertical stirrups: bar placed around the main reinforcement. This is main reinforcement, and बार वर्टिकली प्लेस्ड अराउंड द मेन इन्फोर्समेंट एट सुटेबल स्पेसिंग. एक सुटेबल डिस्टेंस पे मेन इन्फोर्समेंट को टाई करता है सीयर इन्फोर्समेंट बार. ये वर्टिकली प्लेस्ड होता है, इसलिए हमें इसे वर्टिकल स्टीरप्स कहते हैं. बार डायमीटर वेरीज फ्रॉम 6 mm टू 16 mm. ये जो बार होगा इसका डायमीटर 6 to 16 mm वेरी करेगा. The free end of the stirrup are anchored in the compression zone of the beam to the compression bar. ये हमारा मेन इन्फोर्समेंट, ये कंप्रेशन इन्फोर्समेंट और ये हमारा सीयर इन्फोर्समेंट. ओके, तो जो फ्री एंड होता है, जैसे ये हमारा टेंसाइल इन्फोर्समेंट हो गया, ये कंप्रेशन इन्फोर्समेंट हो गया. तो जब हम लोग सीयर इन्फोर्समेंट से इसको टाई करेंगे तो जो फ्री एंड होता है हम लोग इससे कंप्रेशन वाले रिइंफोर्समेंट में एंकर करते हैं. ओके, फ्री एंड ऑफ द स्टीरअप आर एंकर्ड इन द कंप्रेशन जोन ऑफ द बीम टू द कंप्रेशन बार. दिस इज कंप्रेशन बार एंड दिस इज टेंसाइल बार. तो हम लोग कंप्रेशन बार में जो सीयर रिइंफोर्समेंट का फ्री एंड होता है उसको टाई करते हैं. ओके, depending upon the magnitude of the shear force to be resisted by the vertical stirrup may be one-legged or two-legged. Magnitude of the shear force मतलब कितना shear force है, कितना shear force अकर हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि हम लोग स्टीरअप कौन सा प्रोवाइड करेंगे, वन लेग और टू लेग. ओके, वन लेग और टू लेग क्या होता है, जैसे हमारा यहाँ टी सेक्शन है, एक रिइंफोर्समेंट यहाँ आया और एक रिइंफोर्समेंट यहाँ आया, तो हमने इसे इस तरह से कुछ टाई किया सीयर इन्फोर्समेंट से, तो ये वन लेग्ड हो गया, वन लेग स्टीरअप. और ये टू लेग स्टीरअप, दिस इज टू लेग स्टीरअप एंड दिस इज फोर लेग, 1 2 3 4, इसी तरह से काउंट होता है. दिस इज 1 फॉर वन लेग, दिस इज 2 1 2 टू लेग एंड दिस इज 1 2 3 4, सो दिस इज फोर लेग. It is desirable to use closely spaced stirrup for better prevention of diagonal crack. हम लोग मिनिमम से मिनिमम स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे सीयर इन्फोर्समेंट में ताकि डायगोनल क्रैक को प्रिवेंट कर सकें. नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट टर्म फॉर वर्टिकल स्टीरअप इज स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप. स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप नियर द सपोर्ट कैन बी लेस as compared to spacing near the mid span since the shear force is maximum at support. This means this is our beam. Okay, this is support, this is main reinforcement, this is compression reinforcement and this is shear reinforcement. So this term say that कि जो सपोर्ट पे सीयर इन्फोर्समेंट होगा उसका स्पेसिंग क्लोजली स्पेस्ड होगा, मतलब पास होगा एज कंपेयर टू मिड स्पैन.
बिकॉज सपोर्ट पे हमारा शियर फोर्स जो है वो मैक्सिमम डेवलप होता है और मिड स्पैन पे शियर फोर्स कम होता है. दैट्स वाई वी विल ट्राई टू पुट इट here closely spaced. Second, we have bent up bar along with the stirrup. This is bent up bar. So here is definition. Some of the longitudinal bars in the beam can be bent up near the support where they are not required to resist bending moment. Bending moment is very less near the support. ये कह रहा है कि जो longitudinal bars है, यही जो बार है उसको हम लोग एट द सपोर्ट, मतलब सपोर्ट के पास जनरली हम बेंड कर देते हैं एक दो बार को. लॉन्गिट्यूडनल बार जैसे हमारा ये अगर प्लेन हो जाता है तो हम, ये मैं टॉप व्यू बता रही हूँ, ओके. तो टॉप व्यू में मैंने रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करा इस तरह से, तो बहुत सारा मेन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करा मैंने. तो इसमें से कुछ रिइंफोर्समेंट को एट द सपोर्ट हम लोग कुछ इस तरह से बेंड कर देते हैं. मैं इसे अब इस तरह से दिखाती हूँ सेक्शन में कि कुछ बार्स को बेंड कर दिया एट द सपोर्ट, क्योंकि जो रिइंफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं बेंडिंग मोमेंट कैरी करने के लिए है और सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट कम होता है, सबसे कम होता है. इसलिए हम लोग सपोर्ट पे एज ए शियर रिइंफोर्समेंट लॉन्गिट्यूडनल बार को ही, जो हमारा मेन बार है उसी को हम लोग कुछ बार्स को, जैसे 10 नंबर ऑफ बार्स अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें 2 या 3 बार्स को हम लोग बेंड कर देते हैं सपोर्ट के पास. सपोर्ट के पास शियर फोर्स ज़्यादा होता है और बेंडिंग मोमेंट सपोर्ट के पास बहुत कम होता है. मेनली ये रिइंफोर्समेंट बेंडिंग मोमेंट को रेसिस्ट करने के लिए है. तो अगर सपोर्ट पे इसे बेंड कर देते हैं कुछ रिइंफोर्समेंट को, तो इससे बेंडिंग मोमेंट को रेसिस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा और शियर फोर्स को हम लोग रेसिस्ट करने में आसानी हो जाएगा. दिस बेंट अप बार रेसिस्ट डायगोनल टेंशन. जो बेंट अप बार है डायगोनल टेंशन को रेसिस्ट करता है. वहाँ डेवलप हो रहा था यहाँ डायगोनल टेंशन, तो डायगोनल टेंशन को ये बेंट अप बार रेसिस्ट करता है. इक्वल नंबर ऑफ बार्स आर टू बी बेंट अप ऑन द बोथ साइड टू मेंटेन सिमेट्री को मेंटेन करने के लिए जितना बार्स, जैसे इधर बाई चांस 2 बार को हमने बेंड कर रखा है, तो सेम इस साइड भी हम 2 बार्स को सिमेट्री मेंटेन करने के लिए बेंड करेंगे. ओके, these bar can be bent up at more than one point uniformly along the length of the beam. उसे हम लोग more than one point से बेंड कर सकते हैं. The bars are usually bent up at 45 डिग्री. जनरली जो बेंड किया जाता है वो 45 डिग्री पे बेंड होता है. ओके, दिस सिस्टम इज यूज फॉर हैवियर शियर फोर्स. ज़्यादा शियर फोर्स जहाँ आएगा उसके लिए हम लोग बेंट अप बार स्टिरअप यूज करेंगे. द टोटल शियर रेजिस्टेंस ऑफ द बीम इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ बेंट अप बार्स एंड द वर्टिकल शियर स्टिरअप. जो टोटल शियर रेजिस्टेंस इसमें होगा वो हम लोग दोनों को ऐड करके, बेंट अप बार का कंट्रीब्यूशन और वर्टिकल स्टिरअप, तो ये वर्टिकल स्टिरअप हो गया इसका कंट्रीब्यूशन और बेंट अप बार का कंट्रीब्यूशन, दोनों को ऐड करके शियर रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे. द कंट्रीब्यूशन ऑफ द बेंट अप बार्स इज नॉट ग्रेटर दैन हाफ ऑफ द टोटल शियर रिइंफोर्समेंट. कंट्रीब्यूशन ऑफ बेंट अप बार्स इज नॉट ग्रेटर दैन हाफ. 50% ही कंट्रीब्यूशन शियर रिइंफोर्समेंट में हमारा बेंट अप बार प्रोवाइड करता है. Have inclined stirrups. This is inclined stirrups. This is main bar and this is inclined stirrups. So inclined stirrups are provided generally at 45 degree. Not necessary, ज़रूरी नहीं है कि 45 डिग्री पे ही प्रोवाइड करो, बट जनरली हम लोग प्रोवाइड करते हैं फॉर रेजिस्टिंग डायगोनल टेंशन. बार्स आर प्रोवाइडेड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम. पूरे बीम के लेंथ तक हम लोग इसी तरह से इंक्लाइंड स्टिरअप प्रोवाइड करते जाएंगे, इस तरह से थ्रू आउट द लेंथ. We have studied about the shear. Now we will know about the bond. The term bond refer to the adhesion between the concrete and steel which resists the slipping of the steel bar from the concrete. Concrete
कंक्रीट रिइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर में रिइंफोर्समेंट और कंक्रीट के बीच में जो बॉन्डिंग होता है, ग्रिपिंग होता है, उसी को हम लोग बॉन्ड बोलते हैं। कंक्रीट रिइंफोर्समेंट को पकड़ के रखता है, स्लिप होने नहीं देता है, उसी को हम लोग बॉन्ड कहते हैं। इट इज़ द बॉन्ड विच रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर द स्ट्रेस from steel to concrete and thereby providing composite action of the steel and concrete in RCC। बॉन्ड की वजह से ही जो लोड आ रहा है कंक्रीट रिइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर में, वो इसके पार्टिकल्स होता है उसके थ्रू ही ट्रांसफ़र हो रहा है रिइंफोर्समेंट में भी, तो कंबाइंड एक्शन से लोड को स्ट्रक्चर रजिस्ट करने में एबल हो रहा है। बॉन्ड डेवलप ड्यू टू द सेटिंग ऑफ कंक्रीट ऑन ड्राइंग विच रिजल्ट इन क्रिपिंग। कंक्रीट के ड्राई होने के बाद बॉन्ड डेवलप होता है जो कि ग्रिप बनाने में हेल्पफुल होता है। बॉन्ड इन इन्फोर्स्ड कंक्रीट इज ऑब्टेन बाय द दीज मैकेनिज्म। जो बॉन्ड डेवलप होता है कंक्रीट में, इसके थ्रू हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं या ऑब्टेन किया जाता है। केमिकल एडिशन, फर्स्ट it is due to the gum like property of the substance formed after the setting of the concrete। कंक्रीट का ये प्रॉपर्टी होता है कि जो ड्राई होगा, सेट हो जाएगा, तो गम लाइक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाता है, जिसके वजह से ये केमिकल एडिशन फॉर्म होता है। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, इट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस व्हाट is concrete and this is steel। तो दोनों बोथ मटेरियल के बीच में जो फ्रिक्शन डेवलप होता है इसके सरफेस और इसके सरफेस के पास, वो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है। ग्रिपिंग एक्शन, इट इज ड्यू टू द ग्रिपिंग ऑफ स्टील बाय द कंक्रीट ऑन द ड्राइंग। ग्रिपिंग एक्शन क्या होता है कि जो कंक्रीट ड्राई होने के बाद स्टील में ग्रिप बन जाता है कंक्रीट का, मतलब उसे फिक्स कर देता है, वो ग्रिपिंग एक्शन हो गया। मैकेनिकल इंटरलॉक, it is provided by corrugation or ribs present on the surface of the deformed bar। bars है, deformed bars कुछ इस तरह से रिब्स बने होते हैं, रिब्स बने होते हैं रिइंफोर्समेंट बार पे। तो मैकेनिकल इंटरलॉक, इस रिब्स के वजह से इंटरलॉक कंपैक्शन ज़्यादा हो पाता है कंक्रीट के साथ रिइंफोर्समेंट का, इसे बोलते हैं मैकेनिकल इंटरलॉक। द बॉन्ड इज एज्यूम टू बी परफेक्ट इन द डिजाइन ऑफ द रिइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर। हम लोग जो भी कंक्रीट स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं, हमेशा दोनों के बीच में, रिइंफोर्समेंट और कंक्रीट के बीच में जो बॉन्डिंग होता है हमेशा परफेक्ट होना चाहिए, तभी वो एक परफेक्ट स्ट्रक्चर है लोड को कैरी करने में। जो लोड आ रहा है पहले कंक्रीट पार्टिकल्स पर ट्रांसफ़र होते हैं, क्योंकि लोड तो अपर सरफेस पे आ रहा है, तो कंक्रीट सरफेस पे ट्रांसफ़र होंगे, और यही कंक्रीट सरफेस पे जो लोड ट्रांसफ़र हुआ वो रिइंफोर्समेंट में प्रोवाइड करता है कंक्रीट पार्टिकल्स। तो दोनों के बॉन्ड के वजह से वो इस लोड को रेसिस्ट करने में सक्षम हो पाते हैं। ठीक है, तो बॉन्डिंग बोथ मटेरियल्स के बीच में बहुत इम्पॉर्टेंट है। बॉन्ड बिटवीन द स्टील एंड कंक्रीट कैन बी इंक्रीज्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। फर्स्ट, यूजिंग डिफॉर्म्ड और ट्विस्टेड बार। डिफॉर्म्ड या ट्विस्टेड बार को हम लोग यूज करेंगे, इस तरह से डिफॉर्म्ड बार होता है, और ट्विस्टेड बार ट्विस्ट करके बनाया जाता है, कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। तो यूजिंग डिफॉर्म्ड और ट्विस्टेड बार वी कैन इंक्रीज द बॉन्ड बिटवीन द कंक्रीट एंड रिइंफोर्समेंट यूजिंग रिच मिक्स कंक्रीट। हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करके आप बॉन्ड इंक्रीज कर सकते हो। एडिक्वेट कंपैक्शन एंड क्यूरिंग ऑफ द कंक्रीट फॉर प्रॉपर सेटिंग। कॉम्पैक्शन अच्छा होना चाहिए। हमारा बीम का फ्रेम है, इसमें पुट करेंगे कंक्रीट को पुट करेंगे, तो यहाँ आया मटेरियल्स, एक बकेट यहाँ प्रोवाइड करा, एक बकेट यहाँ प्रोवाइड करा, एक बकेट, तो ये सब जो गैप बच जाता है, एक बकेट यहाँ प्रोवाइड किया, कहीं कहीं स्पेस बीच में बच जाता है, उसको कम्पैक्ट करना है अच्छे से, मतलब सब जगह सरफेस
प्लेन होना चाहिए, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर नहीं बनना चाहिए। ओके, एंड क्यूरिंग ऑफ द कंक्रीट फॉर प्रॉपर सेटिंग, प्रॉपर सेटिंग होने के लिए, और इस जब हमने इसे कंपैक्ट कर लिया तो इसे प्रॉपर सेटिंग होने के लिए क्यूरिंग अच्छा होना चाहिए। प्रोवाइड हुक एट द एंड ऑफ द reinforcing bar. This is our beam. We have provided here reinforcement at the end of the bar. हुक प्रोवाइड करेंगे, इसे स्ट्रेट नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से जो बीम आया ये reinforcement, तो ये प्लेन स्ट्रेट नहीं छोड़ेंगे हम, इसे यहाँ हुक प्रोवाइड करेंगे जिसके वजह से वो कंक्रीट में और ग्रिपिंग ज़्यादा इंक्रीज कर सके। स्मॉलर डायमीटर बार, डायमीटर हम लोग कम रखेंगे तो ज़्यादा बॉन्डिंग बनेगा। मोर नॉमिनल कवर, जो कवर होता है, ये कवर क्या होता है, रिइंफोर्समेंट के नीचे जो हम लोग कंक्रीट प्रोवाइड करते हैं, दिस इज कवर। तो कवर को जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग होगा। रिड्यूसिंग स्पेसिंग ऑफ द स्टीरअप, स्टीरअप का जो स्पेसिंग है वो रिड्यूस करेंगे। स्टीरअप क्या होता है, शियर इन्फोर्समेंट, शियर इन्फोर्समेंट का जो स्पेसिंग है उसे कम रखेंगे तो कंक्रीट और रिइंफोर्समेंट के बीच में बॉन्डिंग अच्छे से होगा। बॉन्ड फेलुअर मैकेनिज्म, किस किस वजह से बॉन्ड फेल हो सकता है, क्या क्या मैकेनिज्म है जिसकी वजह से बॉन्ड फेल हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रेकअप ऑफ adhesion बिटवीन द बार एंड कंक्रीट, स्टील एंड कंक्रीट के बीच में adhesion एक प्रॉपर्टी होता है कंक्रीट का, जो अट्रैक्शन दोनों के बीच में कंपैक्शन या कंपैक्ट प्रॉपर्टी को डेवलप करता है। तो अगर adhesion प्रॉपर्टी कम हो जाता है कंक्रीट और बार के बीच में तो बॉन्ड फेल हो सकता है। क्रशिंग ऑफ कंक्रीट इन फ्रंट ऑफ रिब्स ऑफ द बार, कंक्रीट रिब्स ऑफ द बार के पास, जैसे ये हमारा रिइंफोर्समेंट यहाँ है, यहाँ बीम हो गया, तो इसके आसपास का कंक्रीट अगर क्रश हो जाता है, लोड की वजह से क्रश हो जाता है तो हमारा बॉन्ड फेल हो सकता है। लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट ऑफ द कंक्रीट अलोंग द रिइंफोर्समेंट, ये लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट है, स्प्लिट हो जाता है कंक्रीट में रिइंफोर्समेंट के अलोंग, तो हमारा बॉन्ड फेल हो सकता है।